ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بہت مشکل سے اسے مال کی ایک پرفیوم شاپ پر نوکری ملی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ وہ اپنے گھر کی واحد کفیل تھی۔ جب کچھ دن بعد ہی مال سے گزرتے اسفندیار خان زادہ کی نگاہ اس پر پڑی۔ وہ عورتوں کی استعمال کی شے سمجھنے والا کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب بھی اسے اپنے آفس میں اچھی نوکری کی پیشکش کی، وہ اسے باقی لڑکیوں کی طرح سمجھتا تھا، جبکہ وہ اپنے خاندان کی سب سے شریف لڑکی مشہور تھی۔ اسفندیار نے اسے ایک رات کے بدلے پیسوں کی آفر کی۔ وہ بے اختیاری میں اس کے چہرے پر تھپڑ مار گئی۔ نہیں جانتی تھی وہ تھپڑ اس کی زندگی کو جہنم بنا دے گا۔ اگلے دن ہی اسفندیار کے آدمی، لگتا ہے آج بھی تجھے نوکری نہیں ملی، روز یوں منہ اٹھائے گھر واپس چلی آتی ہے۔ شمیم نے غصے سے منہا کی طرف دیکھتے ہوئے طنز کے تیر پھینکے تھے۔ منہا نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی، کیونکہ وہ ان ساری باتوں کے لیے پہلے سے ہی تیار تھی۔ اسی لیے حسب معمول خاموشی سے سر جھکائے گھر میں داخل ہو گئی۔ منہا صحن میں بچھے تخت پر بیٹھ کر اپنے گرد لپٹی شال اتارنے لگی تھی۔ گرمی اور پسینے سے اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ اس کے ماتھے پر اب بھی پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اس نے شال کو اتار کر سائیڈ میں رکھا۔ جب نوکری نہیں ملی تھی تو گھر واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں کہیں مر کھپ جاتی تو میرے سر پر سے ایک بوجھ تو کم ہوتا۔ صحن کے کونے میں بنے باورچی خانے کے فرش پر چولہے کے سامنے بیٹھی روٹیاں بناتی شمیم کی زبان بھی ہاتھ کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ منہا نے کچھ افسوس سے شمیم کی طرف دیکھا۔ منہا کی نگاہوں کا خالی پن مزید بڑھ گیا۔ وہ افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب شمیم کی زبان چلی ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب تک وہ اسے رلا نہیں دے گی، سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ اماں، میں کوشش کر رہی ہوں، جلد ہی نوکری مل جائے گی۔ منہا نے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر شمیم نے آج تک کب کسی کی سنی تھی جو وہ منہا کی سنتی؟ بس کر دو بی بی، تمہارے یہ دلاسے اور تسلیاں میں 2 ماہ سے سنتی آ رہی ہوں، مگر آج تک تمہیں نوکری نہیں ملی۔ روز صبح گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے منہ اٹھا کر گھر سے نکل جاتی ہو اور باقی سارا دن آوارہ گردی کر کے شام میں واپس آتی ہو۔ شمیم کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ منہا نے دکھ سے شمیم کی طرف دیکھا۔ شمیم کو احساس بھی نہیں تھا کہ اس زبان سے نکلے ہوئے تیر کس طرح سے منہا کے دل میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ اماں، میں اپنی مرضی اور خوشی سے تو روز گھر سے نہیں نکل رہی، آپ نے ہی مجھے نوکری کرنے کو کہا ہے، جب ہی میں روز نوکری ڈھونڈنے نکل جاتی ہوں۔ اب مجھے نوکری نہیں مل رہی تو اس میں میرا کیا قصور؟ منہا نے بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا تھا۔ منہا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس گھر سے کہیں غائب ہو جائے۔ وہ روز روز کے اس لڑائی جھگڑے سے بری طرح تھک گئی تھی۔ روز شام کو گھر واپس جاتے ہوئے اس کے قدم من بھر کے ہوتے تھے، مگر گھر کو تو جانا ہی تھا۔ اس کے سوا اس کے پاس رہنے کا نہ تو کوئی ٹھکانہ تھا، ورنہ کب کی وہ اس گھر سے چلی جاتی۔ اس گھر میں اس کی زندگی جہنم بن گئی تھی۔ شمیم نے غصے اور تنفر سے منہا کو دیکھا۔ بس کر، میرے سامنے زیادہ زبان مت چلا، سب جانتی ہوں تجھے۔ باہر آوارہ گردی کرنے کا چسکا لگ گیا ہے۔ اگر تو روز نوکری ڈھونڈنے جاتی تو اب تک تجھے نوکری مل چکی ہوتی۔ پتہ نہیں نوکری ڈھونڈنے کے بہانے روز کہاں جاتی ہے۔ شمیم آج منہا سے لڑنے کے موڈ میں بیٹھی تھی۔ منہا کا دل جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو اپنی آنکھوں میں واپس دھکیلا، اور پھر اس نے دھندلی ہوتی نظروں سے اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کی طرف دیکھا۔ شمیم انہیں گرم گرم روٹی بنا کر دے رہی تھی۔ وہ دونوں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ منہا جانتی تھی اگر اس نے مزید کچھ بولا تو شمیم اسے کھانا بھی نہیں دے گی۔ جب ہی وہ اب چپ کر گئی، کیونکہ اس کے پیٹ میں بھوک سے درد اٹھ رہا تھا۔ شمیم سے بحث کرنا بیکار تھا، کیونکہ منہا جانتی تھی کہ جب تک اسے نوکری نہیں مل جاتی یہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا۔
शमीम इसी तरह उसे बातें सुनाती रहेगी। मिन्हा ने झुककर अपनी छोटी बहन राबिया से कहा, राबी, मुझे भी एक रोटी ला दे। राबिया फौरन अपनी जगह से उठी थी और शमीम के बराबर में रखी चंगेर से रोटी उठा कर ले आई। शमीम उसे घूर कर रह गई, क्योंकि मिन्हा रोटी लेने जाती तो वो कभी उसे रोटी ना देती, उसे इस बात की सज़ा देती कि उसे क्यों नौकरी नहीं मिली, और बहुत सारे दिनों की तरह मिन्हा को भूखा ही सोना पड़ता। सुबह भी अगर रात की रोटी उसकी किस्मत से बच जाती तो वो खाकर घर से निकलती थी, वरना उसे भूखा ही घर से बाहर जाना पड़ता था। शमीम अब भी उसे बातें सुना रही थी, उसे बुरा भला कह रही थी, मगर मिन्हा सर झुकाए दाल से रोटी खाने लगी थी। नवाले भी उसके हलक में फंस फंस कर उतर रहे थे, मगर भूख के हाथों मजबूर होकर वो वहीं बैठी खाना खाती रही। वो जल्दी जल्दी नवाले अपने हलक से उतार रही थी। वो नहीं चाहती थी कि शमीम के सामने उसके सब्र का बांध टूटे और वो यहीं बैठकर फूट फूट कर रो दे। वो खाना खाकर जल्द अज जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। वो खाना खाकर अपनी जगह से उठी और अपने कमरे में जाने लगी। पीछे उसे शमीम के बड़बड़ाने की आवाज़ आई, इसका बाप तो मर गया और मेरे सर पर इसको बोझ बनाकर छोड़ गया। अब मैं अपने बच्चों का पेट भरूं या इसका पेट भरूं? शमीम रोज़ चूल्हे से हटाते हुए बड़बड़ाती थी। मिन्हा ने पलटकर शमीम को देखा और फिर तेज़ी से छत की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई, क्योंकि कमरे में भी शमीम के बड़बड़ाने की वाज़ेह आवाज़ें आती। वो इन आवाज़ों से बचना चाहती थी। वो मज़ीद अपने दिल को ज़ख्मी नहीं करना चाहती थी। शमीम के रोज़ रोज़ के ताने और बातें सुनकर उसकी समातें ज़ख्मी हो गई थी। मिन्हा छत पर आकर दीवार से टेक लगाए बैठ गई और अपने घुटनों में सर दिए फूट फूट कर रोने लगी। यहाँ तक कि रोते रोते उसकी हिचकियाँ बंद गई, मगर फिर भी उसके दिल को सब्र नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को अपने हाथ की हथेली की पुष्ट से साफ किया था। जब तक उसके बाबा जिंदा थे, मिन्हा ने शहजादियों वाली जिंदगी गुजारी थी। शमीम बेगम की इतनी हिम्मत कभी नहीं हुई कि वो मिन्हा को इस तरह से बुरा भला कह सके, मगर 3 माह पहले उसके बाबा इस दुनिया से चले गए थे और फिर मिन्हा की दुनिया अंधेर हो गई। उसके लिए उसका सब कुछ उसके बाबा ही थे। जब वो 5 साल की थी, उसकी माँ मर गई थी। उसके बाद उसके बाबा ने ही बहुत मोहब्बत से उसे पाला, मगर ख़ानदान वालों के दबाव में आकर वो दूसरी शादी के लिए हामी भर गए और इस तरह उनकी शादी शमीम से हो गई। मगर शमीम ने पहले दिन से ही कभी भी मिन्हा को दिल से कबूल नहीं किया था। वो जाने क्यों मिन्हा से खार खाती, मगर अपने शौहर की वजह से मिन्हा को कुछ कह नहीं सकती थी। मिन्हा के मज़ीद 3 बहन भाई इस दुनिया में आए, मगर फिर भी मिन्हा के बाबा की ज़िंदगी से मिन्हा की अहमियत कभी कम ना हुई। वो अपनी बेटी पर जान छिड़कते थे। उन्होंने हमेशा मिन्हा की हर ख्वाहिश पूरी की थी। वो मजबूरन मारे बांधे शमीम से शादी करने पर राज़ी हुए थे, क्योंकि बहरहाल घर चलाने के लिए एक औरत की ज़रूरत थी। और कुछ शमीम बेगम की ज़बान भी ऐसी थी कि वो कभी अपने शौहर को अपना नहीं बना सकी। मिन्हा उन्हें कांटे की तरह चुभती थी, क्योंकि उनके ख्याल में मिन्हा उनके बच्चों का हक मार रही थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मिन्हा अपने हिस्से का प्यार ले रही थी, जबकि शमीम के 3 बच्चे अपने हिस्से की मोहब्बत ले रहे थे। मगर तब भी शमीम को सुकून नहीं था। उसने मिन्हा से बैर बांध लिया था। वो किसी भी सूरत मिन्हा को बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं थी। सारा दिन मिन्हा को घर के कामों में उलझाए रखती। मिन्हा ने बड़ी मुश्किलों से मैट्रिक का इम्तहान दिया। उसे पढ़ने के लिए कुछ लम्हे भी मुयस्सर नहीं आते थे। जब वो किताबें खोलती तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता था, क्योंकि शमीम उसे इतनी भी मोहलत नहीं देती थी कि वो कुछ भी पढ़ सके। मिन्हा जानती थी कि शमीम उसकी सौतेली माँ है, मगर मिन्हा ने उसे हमेशा अपनी माँ ही समझा था। मगर शमीम कभी उसे अपनी बेटी ना समझ सकी। मिन्हा मैट्रिक में बड़ी मुश्किलों से पास हुई और फिर उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया, मगर यहाँ आकर भी वही हालात रहे। उसने बड़ी मुश्किलों से इंटर किया था और फिर उन्हीं दिनों उसके बाबा अचानक ही उसे छोड़कर चले गए। रात वो बिल्कुल ठीक ठाक सोए थे,
मगर सुबह उठ ही नहीं सके। पूरे घर में कोहराम मच गया। मिन्हा हकीकी मायनों में यतीम हो गई थी। अब वो मुकम्मल तौर पर शमीम के रहमो करम पर थी। उसके बाबा को गए महज 15 दिन हुए थे। वो अपने कमरे में बिल्कुल खामोश सी बैठी थी जब शमीम ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई। तुम्हारा बाप मर चुका है, अब इस घर में कोई कमाने वाला नहीं है और मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने बच्चों का भी पेट भरूं और तुम्हारा भी। इसलिए बेहतर है तुम कोई नौकरी कर लो ताकि घर में 4 पैसे आने का आसरा हो। शमीम ने सख्त और 2 टोक लहजे में मिन्हा से कहा। मिन्हा ने हैरत से शमीम को देखा। उसके बाबा की उसी मोहल्ले में 2 दुकानें थीं जिनका किराया आता था। उस किराए से वो लोग बासानी गुजर बसर कर सकते थे। मिन्हा को नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर वो ये बात शमीम से कह ना सकी। मेरा मुंह क्या देख रही हो? मैंने कोई तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा। अगर इस घर में रहना है तो नौकरी करके पैसे लाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें बिठाकर नहीं खिलाऊंगी। शमीम का ये रूप देखकर मिन्हा हैरान रह गई। उसने कभी भी अपनी सौतेली माँ को खुद से इस लहजे में बात करते नहीं सुना था, मगर आज जब उसके बाबा इस दुनिया से चले गए थे तो इस घर में भी उसका रहना मुश्किल हो गया था। मिन्हा उसके अगले दिन से ही नौकरी की तलाश कर रही थी, मगर महज इंटर करते हुए शख्स को कौन नौकरी देता है, जबकि मिन्हा का तो अभी रिजल्ट भी नहीं आया था। जाने क्या सोचकर शमीम ने उसे नौकरी ढूंढने पर लगाया, और जब मिन्हा रोज शाम को खाली हाथ घर आती तो शमीम उसे बेनुक्त सुनाती, उसे बोझ कहती, बदकिरदार होने के ताने देती। मिन्हा को ये सारी बातें खामोशी से सुननी पड़ती थी, क्योंकि इसके सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं था। शमीम का हौसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मिन्हा को लग रहा था अगर उसे मजीद कुछ दिन तक नौकरी ना मिली तो शमीम उसे घर से निकाल देगी। आज भी मिन्हा नौकरी ढूंढने के लिए निकल खड़ी हुई। उसकी दोस्त ने मॉल में एक शॉप का पता बताया, इसीलिए फौरन नौकरी करने के लिए वहां चली आई। उसे हर हाल में नौकरी करनी थी। कैसी भी नौकरी हो वो करने के लिए तैयार थी। वो दिए गए पते पर पहुंच चुकी थी। ये परफ्यूम शॉप थी। वहां बेहद महंगे परफ्यूम्स रखे हुए थे। मिन्हा कुछ देर बाद उस दुकान के मालिक के सामने बैठी हुई थी। उस दुकान के मालिक ने हैरत से मिन्हा को देखा। इतनी सी उम्र में ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो एक परफ्यूम शॉप में नौकरी के लिए भी तैयार थी। सर प्लीज, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। आप मुझे ये नौकरी दे दें। मैं दिल लगाकर काम करूंगी। मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मिन्हा ने दुकान के मालिक के सामने हाथ जोड़ दिए, क्योंकि सुबह शमीम ने कहा था कि अगर आज भी उसे नौकरी ना मिले तो उसे हरगिज़ भी घर आने की ज़रूरत नहीं है। मिन्हा को लग रहा था वो सिर्फ धमकी नहीं दे रही, बल्कि आज वाकई उसे हाथ से पकड़कर घर से निकाल देगी। शायद इस दुकान के मालिक को मिन्हा पर रहम आ गया था। उसने कुछ देर सोचा और मिन्हा को नौकरी दे दी। मिन्हा को उस परफ्यूम शॉप में सेल्स गर्ल की नौकरी मिल गई थी। वो ये जॉब पाकर बहुत खुश थी। खुशी के मारे उसके कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। वो खुशी खुशी घर वापस आई ताकि शमीम को ये खबर सुना सके। शमीम ने सपाट चेहरे के साथ मिन्हा के मुंह से नौकरी मिलने की खबर सुनी, मगर मुंह से कुछ नहीं बोली। मिन्हा अगले दिन से ही काम पर जाना शुरू हो गई थी। वो उस परफ्यूम शॉप में सेल्स गर्ल की नौकरी करके रात को घर वापस आती। अभी तक उसे उसकी पहली तनख्वाह नहीं मिली थी, मगर शमीम ने उसका जीना हराम कर दिया था। मिन्हा उसे समझा समझा कर थक गई थी कि जब महीना पूरा होगा जब ही उसे तनख्वाह मिलेगी, मगर शमीम कोई बात सुनने के लिए राजी ही नहीं थी। जब भी तुझे तेरी तनख्वाह मिले तो पूरी तनख्वाह लाकर मेरे हाथ में रखेगी। अगर तूने उसमें एक धेला भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शमीम ने कड़े तेवरों से मिन्हा को देखते हुए कहा। मिन्हा ने एक सर्द आ भरकर उसे देखा। अम्मा, अभी पहली तारीख आने में 5 दिन बाकी हैं। आप फिक्र मत करें, मैं सारे पैसे आपको ला कर दूंगी। मिन्हा ने रोज की तरह आज फिर उसे दिन गिनवाया और पूरी तनख्वाह उसके हाथ पर रखने की यकीन दहानी करवाई।
शमीम ने सर झटक कर सहन में बने नलके पर बैठकर पतीली के पेंदे को रगड़ने लगी। और फिर पहली तारीख भी आ गई। मिन्हा को उसकी तनख्वाह मिल गई थी। वो बेहद खुश थी। उसे लग रहा था अब कम से कम शमीम का रवैया उसके साथ ठीक हो जाएगा। वो उसके साथ अगर प्यार से बात नहीं करेगी तो उसे ताने भी नहीं देगी। मगर ये महज उसकी खाम ख्याली थी। शमीम जानबूझकर उसे तंग करती। मिन्हा तनख्वाह लेकर घर में दाखिल हुई तो उसने शमीम को अपना मुंतजिर पाया। मिन्हा ने खामोशी से सफ़ेद लिफाफे में लिपटी हुई रकम शमीम के हाथों पर रख दी। शमीम की आंखों में चमक उभरी। उसने जल्दी से लिफाफा खोलकर पैसे गिनने शुरू किए कि कहीं मिन्हा ने उसमें से पैसे कम तो नहीं कर लिए। और फिर जब उसे पूरे पैसे होने का इत्मीनान हुआ तो शमीम जल्दी से उन पैसों को संभाल कर रखने के लिए अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने उन पैसों में से 1 रुपया भी मिन्हा को नहीं दिया। मगर मिन्हा को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। वो बस चाहती थी कि शमीम उसे इस घर में सुकून से रहने दे। वो अपने कमरे में आ गई। इन 4 महीनों में आज वो वाहिद दिन था जब शमीम ने उसे जली कटी नहीं सुनाई थी, उसे बुरा भला नहीं कहा था, उसके मरे हुए माँ बाप को नहीं कोसा था। आज मिन्हा के दिल को सुकून मिला। उसे हमेशा से लगता था कि उसके मरे हुए माँ बाप को शमीम उसकी वजह से ही बुरा भला कहती हैं, क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिल रही। मिन्हा को अपनी माँ याद नहीं थी, मगर वो अपने बाबा को कैसे भूल सकती थी? उनकी मोहब्बत से कैसे नजरें चुरा सकती थी? अगर आज उसके बाबा जिंदा होते और उसे चंद हजार के लिए यूं दर बदर रुलते हुए देखते तो जाने उन्हें कितनी तकलीफ होती। अगर वो जिंदा होते तो मिन्हा को ये दिन कभी ना देखने पड़ते। मगर सारा मसला यही तो था कि वो जिंदा नहीं थे। वो मिन्हा को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। मिन्हा को अब जमाने के सर्दो गरम से तन्हा लड़ना था। उसके लिए लड़ने वाला अब कोई नहीं था। आज उसे शमीम के बड़बड़ाने की आवाज़ें भी नहीं आ रही थी। घर में जैसे सन्नाटा सा छाया था। शायद शमीम दोबारा से पैसे गिन रही होगी। मिन्हा ने सर झटकते हुए सोचा और फिर बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। आज उसे बहुत दिनों बाद सुकून की नींद आई थी। मिन्हा परफ्यूम शॉप में खड़ी गाहकों को डील कर रही थी। आज के दिन रश मामूल से ज्यादा था। वो बुरी तरह थक गई थी, मगर वो बैठ नहीं सकती थी क्योंकि उसे यहां बैठने की इजाजत नहीं थी। उसके पैर बुरी तरह से दुख रहे थे। मिन्हा ने अपनी घड़ी में वक्त देखा। शाम के 5 बज रहे थे, मगर वो नहीं जानती थी कि वो इस वक्त किसी की नजरों के हिसार में आ चुकी है। परफ्यूम शॉप के बाहर से गुजरता कोई शख्स उसे देखकर थम सा गया। मिन्हा अपना काम करने में मसरूफ थी, मगर बाहर खड़ा वो शख्स उसी लम्हे अपने दिल का चैन और सुकून लुटा चुका था। कुछ देर बाद वो उस परफ्यूम शॉप में दाखिल हुआ। वो असफंदियार खानजादा था, जिसकी नज़र मिन्हा पर पड़ी थी और वो अगली सांस लेना तक भूल गया। वो एक ट्रांस की सी कैफियत में परफ्यूम शॉप में दाखिल हुआ। मिन्हा उसकी जाने मुतवज्जो हुई थी, मगर असफंदियार खानजादा शॉप में रखे परफ्यूम्स के बजाय मिन्हा को देखने में मसरूफ था। मिन्हा को उसका इस तरह से देखना अजीब लगा, मगर वो उसे कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि ये उसके काम की जगह थी और असफंदियार खानजादा उसका कस्टमर था। इसीलिए उसे हर सूरत उसके साथ अच्छे से पेश आना था और बेहतरीन इखलाक का मुजाहिरा करना था। असफंदियार खानजादा एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा था जो औरतों को सिर्फ इस्तेमाल करने की शय समझता था। उसे अपने सामने खड़ी वो नाजुक सी लड़की पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। अब वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। तुम्हारा नाम क्या है? असफंद ने अपने ख्यालों में चौंकते हुए मिन्हा से गंभीर लहजे में पूछा। अपने सामने खड़े शख्स का सवाल सुनकर मिन्हा चौंक सी गई, मगर उसके लिए यह ज़रूरी था कि वो उसे अच्छे से जवाब दे। इसलिए मिन्हा को उसे अपना नाम बताना पड़ा। मिन्हा का नाम सुनकर असफंदियार के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। घनी मूंछों तले उनाबी लब एक जाविये में ढले थे। तुम बेहद खूबसूरत हो। तुम अपना वक्त इस मामूली सी नौकरी करने में क्यों ज़ाया कर रही हो? मेरे पास तुम्हारे लिए
इससे कहीं बेहतर नौकरी मौजूद है। अगर तुम मेरे ऑफिस में नौकरी करोगी तो जितनी तुम्हें यहाँ सैलरी मिल रही है उससे 3 गुना ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा। असफंद ने गहरी नजरों से मिन्हा को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मिन्हा की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने बेयकीनी से अपने सामने खड़े शख्स को देखा जो बेबाक नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसे इसका इस तरह से देखना और अपनी खूबसूरती की तारीफ करना कुछ अजीब सा लगा, मगर वो उसे यहाँ से 3 गुना ज्यादा सैलरी की पेशकश कर रहा था। मिन्हा को समझ नहीं आया कि वो उसकी बात का क्या जवाब दे। वो अभी उसकी पेशकश पर गौर कर रही थी। उसे नीम रजामंद देखकर असफंदियार ने अपना दूसरा पत्ता फेंका। और अगर तुम मेरे साथ 1 रात गुजारोगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा, क्योंकि तुम बेहद खूबसूरत हो। तुम्हारे जैसी हसीन लड़कियां मेरी कमजोरी है। असफंदियार ने मिन्हा की जानिब झुकते उसके सुर्ख अनार होते गालों को अपनी उंगली की पोर से छूते हुए कहा। असफंदियार की बात सुनकर मिन्हा बेख्तियार अपनी जगह से चंद कदम पीछे हटी। हद तक और जिल्लत के एहसास से उसका चेहरा सुलगने लगा था। सामने खड़ा वो मगरूर सा शख्स उसे जाने क्या समझ रहा था। मिन्हा के लिए अपनी इज्जत सबसे अजीज थी। वो अपनी इज्जत पर किसी किस्म का समझौता नहीं कर सकती थी। मिन्हा ने जब्त से अपनी मुट्ठियां भींची। वो नहीं चाहती थी कि यहाँ कोई तमाशा बने। उसके लिए ये नौकरी बहुत ज़रूरी थी, मगर असफंदियार उसकी खामोशी को उसकी कमज़ोरी समझा था। 1 रात के कितने पैसे लोगी? जितने पैसे बोलोगी अभी देने को तैयार हूं। बस मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हारे हुस्न को खिराज तहसीन पेश कर सकूं। असफंदियार ने उसके चेहरे पर आई सुनहरी लट को अपनी हाथ से पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए खुमार आलूद लहजे में कहा। मिन्हा इससे ज्यादा जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसका हाथ उठा और असफंदियार के चेहरे पर उंगलियों के निशान छप गए। परफ्यूम शॉप में मौजूद सारे कस्टमर और वर्कर्स उन दोनों की जानिब मुतवज्जो हुए। वहां मौजूद सारे वर्कर्स ने बेइख्तियार अपने मुंह पर हाथ रखा, क्योंकि असफंदियार उनका रेगुलर कस्टमर था और उस दुकान के मालिक का बहुत अच्छा दोस्त भी था। असफंदियार चंद लम्हों तक सुन रह गया। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि सामने खड़ी इस छोटी सी और नाजुक सी लड़की ने उसके ऊपर हाथ उठाया। शर्मिंदगी के मारे असफंदियार का चेहरा सुर्ख हो गया, जबकि मिन्हा खौफ और दहशत से असफंद को देख रही थी। असफंदियार चंद लम्हों तक उसे गुस्से से घूरता रहा और फिर लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया। मिन्हा से अपने पैरों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया था। असफंदियार के जाने के बाद वो बेख्तियार सोफे पर बैठी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। सब लोग खड़े हैरत और बेयकीनी से मिन्हा को देख रहे थे, जिसने अपनी शामत खुद बुलवाई थी। वो बेख्तियार ही फूट फूट कर रोने लगी। परफ्यूम शॉप का मैनेजर भी अब तक वहीं खड़ा था। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो कुछ भी उनकी आंखों ने देखा वो सब सच है। मिन्हा ने वाकई इतने लोगों की मौजूदगी में असफंदियार खानजादा पर हाथ उठाया है और असफंदियार खानजादा उसे बिना एक भी लफ्ज कहे वहां से जा चुका है। तुम जानती हो तुमने क्या हरकत की है? तुम्हारी वजह से पूरे मॉल में हमारी दुकान बदनाम हो गई है। परफ्यूम शॉप का मालिक बुरी तरह से मिन्हा पर गरज रहा था, जबकि मिन्हा सर झुकाए खड़ी उसकी सारी फिटकार सुन रही थी। सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। वो मुझसे इखलाक से गिरी हुई बात कर रहे थे। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? मिन्हा ने अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमजोर सा दिफा करने की कोशिश की, जबकि ये तो पहले ही तय था कि वहां कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा। सब उसे ही बुरा भला कहेंगे, और हो भी यही रहा था। कल से तुम्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं। मैं इस शॉप में तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दुकान के मालिक ने गुस्से से मिन्हा को काम से ही निकाल दिया। उसकी बात सुनकर मिन्हा के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो बेयकीनी से उसे देखने लगी थी। सर, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें। ये जॉब मेरे लिए बहुत जरूरी है। मिन्हा ने गिड़गिड़ाते हुए उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा था।
मगर वो मिन्हा की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। सीधी शराफत से यहां से निकलो, वरना गार्ड्स को बुलाकर धक्के मारकर यहां से निकाल दूंगा। दुकान के मालिक का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। मिन्हा का दिल किया कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो खामोशी से अपना सामान समेटकर वहां से निकल आई। सारे रास्ते वो रोती हुई घर आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से घर जाकर शमीम को ये बात बताएगी कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। अभी कल ही की तो बात थी। शमीम उसकी तनख्वाह लेकर कितनी खुश हुई थी कि उसने मिन्हा को बातें भी नहीं सुनाई थी। मिन्हा भी कल पहली बार सुकून से सोई थी और आज ये सब कुछ हो गया। उसे नौकरी से ही निकाल दिया गया। पहले ही इतने महीनों की ख्वारी के बाद उसे ये नौकरी मिली थी। उसके आंसू किसी भी सूरत नहीं रुक सके थे। शमीम की मुतवक्का रद्द-ए-अमल सोच सोच कर उसका दिल दहल रहा था। वो घर पहुंची तो मगरिब हो चुकी थी। मिन्हा रात को 10 बजे तक घर आई, मगर आज उसे जल्दी घर में दाखिल होते देखकर शमीम चौंक गई। खैरियत तो है, आज इतनी जल्दी घर आ गई? शमीम ने जांचती नजरों से मिन्हा को देखते हुए कहा था। मिन्हा का सुता हुआ चेहरा उसकी नजरों से छुपा नहीं रह सका। रो रो कर उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी, मगर शमीम को बताना भी जरूरी था। उसे बताए बगैर चारा नहीं था। मुझे नौकरी से निकाल दिया है, मिन्हा ने नम लहजे में शमीम से कहा। आंसू एक बार फिर से उसकी आंखों में इकट्ठे होने लगे। शमीम ने नासमझी से उसे देखा और फिर जब उसे बात समझ आई तो शमीम के माथे पर लातादाद शिकने नमूदार हो गईं। ये क्या कह रही है तू? अपने होशो हवास में तू है? अभी कल ही तो तुझे पहली तनख्वाह मिली और तुझे आज नौकरी से निकाल दिया। शमीम ने अपनी कमर पर हाथ रखते तेज आवाज में कहा। उसकी आवाज की चुभन मिन्हा को अपने कानों में महसूस हुई थी। ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तुझे इस तरह से नौकरी से निकाल दिया? जरूर तूने ही कुछ किया होगा। शमीम उसकी बात सुनकर आपे से ही बाहर हो गई थी। मिन्हा की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वो जानती थी कि शमीम को हकीकत बताने का कोई फायदा नहीं, वो उल्टा उसी को मुरद इल्जाम ठहराएगी। मगर शमीम भी हकीकत जाने बगैर टलने वालों में से नहीं थी। इसलिए मिन्हा ने वहां जो कुछ भी हुआ उसे सारी बात बता दी। उसने तुझसे सिर्फ बोला ही था, कौन सा तुझे अपने साथ ले गया था जो तूने इतने बड़े शख्स को थप्पड़ ही मार दिया? तेरी अकल घास चरने गई थी क्या? उसकी बात सुनकर शमीम अपना सर थाम कर रह गई। मिन्हा ने अफसोस से शमीम को देखा। उसे शमीम से इसी बात की उम्मीद थी और शमीम उसकी उम्मीद पर पूरी उतरी भी थी। मैं कुछ नहीं जानती मिन्हा, जल्द ही दूसरी नौकरी तलाश कर। मैं तुझे घर बिठाकर नहीं खिलाऊंगी। शमीम ने हाथ नचाते हुए मिन्हा से कहा। तो वो एक ठंडी सांस भरकर रह गई। वो जानती थी कि उसे कल ही दूसरी नौकरी की तलाश में निकलना पड़ेगा। वो भारी दिल के साथ अपने कमरे में आ गई, क्योंकि अभी वो दिल खोलकर रोना चाहती थी। मिन्हा नहीं जानती थी कि असफंदयार खानजादा को मारा गया एक थप्पड़ उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना देगा। जब रोते रोते उसकी आंख लगी, किसी ने उसे रात के खाने तक के लिए नहीं उठाया। अब उसकी एक रोटी भी शमीम को भारी लग रही थी। सुबह उसकी आंख खुली तो उसका सर शदीद दुख रहा था। वो कितनी ही देर अपनी जगह पर लेटी रही। उसमें उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मगर वो नहीं चाहती थी कि शमीम दोबारा से उसे बातें सुनाए। इसीलिए हिम्मत करते अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने वक्त देखा तो दोपहर होने वाली थी। अब नाश्ता मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो हाथ मुंह धोकर बाहर आई तो शमीम सहन में बैठी दाल चावल चुन रही थी। तुम्हारी सुबह तो हो गई है, जाकर दोपहर के खाने की तैयारी करो, शमीम ने मिन्हा को देखते हुए कहा। वो खामोशी से बावर्ची खाने में आ गई। उसी लम्हे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी ने बुरी तरह से दरवाजा पीट दिया था। अरे कौन है जो इस तरह से दरवाजा बजा रहा है? शमीम ने अपनी जगह से उठते हुए कहा और दरवाजे की जानिब बढ़ी। मिन्हा भी बावर्ची खाने से निकल आई थी। शमीम ने दरवाजा खोला
تو 3 آدمی زبردستی گھر میں داخل ہو گئے۔ کون ہو تم لوگ اور اس طرح سے کیوں میرے گھر میں داخل ہو رہے ہو؟ شمیم گھبراتے ہوئے چلائی اور ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان لوگوں نے متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھا تو منہا انہیں سامنے ہی کھڑی دکھائی دی، جو خوف سے انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہم لوگ اسفندیار خانزادہ کے آدمی ہیں، ان میں سے ایک آدمی نے منہا کی طرف دیکھتے سرد لہجے میں کہا۔ تو اسفندیار کا نام سن کر منہا کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، وہ خوف اور دہشت سے ان آدمیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کون اسفندیار خانزادہ؟ شمیم نے ناسمجھی سے ان آدمیوں سے پوچھا۔ وہی شخص جسے کل تمہاری لڑکی نے تھپڑ مارنے کی غلطی کی تھی۔ وہی شخص دوبارہ سرد لہجے میں بولا۔ منہا کو لگا وہ اب کبھی سانس نہیں لے سکے گی، اسے سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہی آدمی آگے بڑھا اور اس نے منہا کی کلائی سختی سے تھام لی اور اسے اپنے ساتھ لیے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ منہا اس کی گرفت میں تڑپتے ہوئے کہنے لگی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس آدمی کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ شمیم نے بھی آگے بڑھ کر منہا کا ہاتھ اس آدمی کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی۔ وہ آدمی فوراً اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ اگر تم ہمیں اس لڑکی کو لے جانے نہیں دوگی تو ہم تمہاری دونوں بیٹیوں کو لے جائیں گے، اس آدمی نے سرد لہجے میں شمیم سے کہا تھا۔ شمیم کے ہاتھ کی گرفت یکدم ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے اپنی دونوں بیٹیوں کی طرف دیکھا، جو سہمی ہوئی ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی کھڑی تھی۔ شمیم نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ منہا بے یقینی سے شمیم کو دیکھ رہی تھی۔ اور ہمارے جانے کے بعد چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی غلطی سے بھی پولیس میں جانے کی کوشش کرنا۔ ہم لوگوں کی نظریں تم پر ہی ٹکی ہوئی ہیں۔ جب اسفندیار خانزادہ کا دل اس لڑکی سے بھر جائے گا تو ہم لوگ خود اس لڑکی کو واپس چھوڑ جائیں گے، اس آدمی نے شمیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ منہا کو لگا جیسے کسی نے اسے تھپڑ دے مارا ہو۔ اس نے ایک بار پھر سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ شمیم بھی ساکت سی کھڑی تھی۔ وہ لوگ زبردستی منہا کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکا۔ منہا خوف کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو اندھیرے کمرے میں پایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں موجود ہے۔ اس نے سوئچ بورڈ کی تلاش میں دیوار پر ہاتھ مارا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے سوئچ بورڈ مل گیا۔ اس نے ایک ساتھ ہی 7 بٹن دبا دیے۔ کمرہ یکدم ہی روشنی میں نہا گیا۔ وہ ایک دم سے ٹھٹک گئی تھی۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت کمرے میں موجود تھی، جس کی تھیم سفید اور سنہری رنگ پر مشتمل تھی۔ سامنے والی دیوار میں بیش قیمت پردے لٹکے تھے۔ وہ فوراً ہی ان پردوں کے پاس گئی۔ یقیناً ان پردوں کے پار کھڑکی موجود تھی۔ منہا نے ایک جھٹکے سے پردے ہٹائے تو یکدم ہی سامنے کا منظر واضح ہو گیا۔ رات اتر آئی تھی۔ وہ یقیناً کسی گھر کی پہلی منزل پر موجود تھی۔ اس کے سامنے شیشے کے سلائیڈنگ ڈور لگے تھے، جن کے پار اسے بالکنی نظر آ رہی تھی۔ منہا نے وہ سلائیڈنگ ڈور کھولنے کی کوشش کی مگر وہ لاک تھے۔ کچھ دیر تک منہا کوشش کرتی رہی۔ اس نے سلائیڈنگ ڈور کے پار نظر آتے لان کو دیکھا تھا، جو اندھیرے میں جگمگا رہا تھا۔ منہا سلائیڈنگ ڈور چھوڑ کر دروازے کی جانب بڑھی، مگر دروازہ بھی باہر سے لاک تھا۔ وہ دروازہ بجانے لگی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ تھک ہار کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کنگ سائز بیڈ پر سنہرے رنگ کی مخمل کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ یقیناً منہا کچھ دیر پہلے اسی بیڈ پر موجود تھی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ منہا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اب وہ کیا کرے۔ وہ اس وقت اسفندیار خانزادہ کی قید میں تھی۔ کافی دیر اسے یوں ہی گزر گئی۔ کبھی وہ اٹھ کر چیخنے لگتی اور دروازہ بجانے لگتی، تو کبھی تھک ہار کر رونے لگتی، مگر وہاں اس کی آہو بکا سننے والا کوئی نہیں تھا۔ منہا کو شمیم کے رویے پر دکھ ہوا۔ وہ بیٹیوں کی حفاظت کی خاطر
اس نے منہا کو ان آدمیوں کے حوالے کر دیا تھا۔ اگر آج اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو منہا کو کبھی یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ رو رو کر اس کی حالت بری ہو گئی تھی، مگر جانے اسفندیار خانزادہ کہاں تھا؟ وہ اس شہزادی کو قید کر کے بھول ہی گیا تھا۔ اسفندیار خانزادہ کو لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، مگر اس نے اس تھپڑ کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور اب جب تک وہ منہا کو اپنے سامنے جھکا نہیں لیتا اسے چین نہیں ملنے والا تھا۔ منہا نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا بھی دن آئے گا۔ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ کبھی بھی نوکری کی تلاش میں گھر سے نہ نکلتی۔ وہ شمیم کی کڑوی کسیلی باتیں سہ لیتی، مگر اپنے پاؤں گھر سے باہر نہ نکالتی۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ آخرکار کمرے کا دروازہ کھلا اور اسفندیار کمرے میں آیا۔ اسے دیکھتے ہی منہا اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ اسفندیار کے چہرے پر سرشاری چھائی ہوئی تھی، جبکہ منہا کسی سہمے ہوئے کبوتر کی مانند لگ رہی تھی جو اپنے جھونڈ سے بچھڑ گیا ہو۔ دیکھ لیا میرے منہ پر تھپڑ مارنے کا انجام؟ تم پل بھر میں کہاں سے کہاں آ گئی؟ اسفندیار نے اس کے قریب آتے زہر خند لہجے میں کہا۔ کیا مل گیا تمہیں یہ سب کچھ کر کے؟ منہا نے بھیگے ہوئے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ تم مجھے پسند آ گئی ہو، میں تمہارے ساتھ بس کچھ پل گزارنا چاہتا ہوں۔ اسفندیار نے منہا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے کہا۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے ساتھ یہ سب مت کرو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ منہا نے سسکتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہی ادا تو مجھے اچھی لگی ہے۔ اسفندیار نے اس کے گالوں پر بہنے والے آنسوؤں کو اپنی پوروں پر چنتے ہوئے کہا۔ اسفندیار کا لمس منہا کو کسی ڈنگ کی مانند لگا۔ وہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹی۔ میں بس تم پر ایک احسان کرتا ہوں، تمہیں اپنے بستر پر لے جانے سے پہلے تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں بغیر نکاح کے تمہارے قریب آیا تو تم تو بے موت مر جاؤ گی۔ اسفندیار نے بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ منہا کی دھڑکنیں رک گئی تھیں۔ مجھے میرے گھر جانے دو، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تم بغیر نکاح کے ہی میرے قریب آنا چاہتی ہو۔ اسفندیار کا لہجہ پل بھر میں ہی سنگین ہوا تھا۔ منہا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو، کچھ دیر بعد مولوی صاحب آ رہے ہیں، ہم دونوں کا نکاح ہے۔ جب میرا دل تم سے بھر جائے گا میں تمہیں آزاد کر دوں گا، مگر جب تک تمہیں اپنے تھپڑ کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسفندیار نے گہری نظروں سے منہا کے کپ کپاتے سراپے کی طرف دیکھتے کہا، اور پھر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ منہا سر تھام کر رہ گئی۔ اب اسفند سے نکاح کیے بنا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسفندیار کی ضد بن چکی ہے، وہ ہر صورت اسے پا کر ہی رہے گا۔ اگر منہا نے نکاح سے انکار کیا تب بھی وہ اسے حاصل کر لے گا۔ اسی لیے ابھی منہا کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ اسفندیار سے نکاح کر لے۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی اسے بچانے نہیں آئے گا۔ شمیم نے تو اس کے گھر جانے پر سکھ کا سانس لیا ہوگا، اسی لیے وہ کس کے بل بوتے پر لڑتی، اسے یہ نکاح کرنا ہی تھا۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب آ گئے۔ منہا نے روتے روتے اسفندیار سے نکاح پر حامی بھر لی۔ کمرے سے گواہ اور مولوی صاحب جا چکے تھے۔ وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی۔ جب اسفندیار کمرے میں داخل ہوا اور دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا، اس کے یوں قریب آنے پر منہا کا سانس اس کے سینے میں اٹکنے لگا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے اسفندیار کو دیکھ رہی تھی۔ اسفندیار کی نظروں میں چھائی خماری اسے واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اسفندیار جیت کے نشے میں سرشار منہا کو رونتا چلا گیا۔ وہ رات منہا پر بہت بھاری گزری تھی، جبکہ اسفندیار بہت سکون سے سویا تھا۔ صبح اسفندیار کی آنکھ کھلی تو منہا بیڈ پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ اس نے کوفت سے اسے دیکھا۔ یار، ہم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے، تم میری بیوی ہو، میں نے کچھ غلط نہیں کیا جو تم اس پر رو رہی ہو۔ اسفندیار نے اٹھ کر بیڈ کے سرہانے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ منہا نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ جو چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے، اب مجھے یہاں سے جانے دے، منہا نے روتے ہوئے کہا۔ اتنی آسانی سے تو میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا۔
जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता तुम मेरे पास रहोगी। असफंदयार ने उसे एक बार फिर से अपनी जानिब घसीटते हुए कहा। मिन्हा तड़प कर रह गई। मिन्हा को यहां रहते 1 महीना हो गया था। असफंदयार उससे नरमी से ही पेश आता था, हाँ, मगर रोज उस पर अपनी भरपूर मोहब्बत निछावर करना नहीं भूलता था। मिन्हा को भी अब यहां रहने की आदत हो गई थी। वो भी असफंदयार की शिद्दतों की आदी हो गई। वो ऑफिस से घर आया तो सीधा अपने कमरे में गया, क्योंकि मिन्हा उसे कहीं दिखाई नहीं दी थी। मिन्हा इस वक्त लाउंज में बैठी होती थी, मगर आज वहां वो मौजूद नहीं थी। असफंदयार बुरी तरह से बेचैन हो गया। वो सारे घर में मिन्हा को आवाजें दे रहा था। उसका दिल अजीब अजीब वहमों का शिकार होने लगा। उसे लग रहा था मिन्हा उसे छोड़कर जा चुकी है, और ये बात असफंद की बर्दाश्त से बाहर थी। यकदम उसे एहसास हुआ था कि ये कुछ और था। वो मिन्हा से मोहब्बत करने लगा था। इस एहसास के होते ही वो अपनी जगह पर थम सा गया। उसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। वो मिन्हा को ढूंढता हुआ छत पर आया तो मिन्हा उसे सामने ही दिखाई दी। उसकी जान में जान आ गई। मिन्हा ने आहट पर पीछे मुड़कर देखा तो असफंदयार अपने घुटनों पर हाथ रखे झुका हुआ था। मिन्हा, तुम यहां क्या कर रही हो? असफंदयार ने मिन्हा के करीब आते उसे सवाल किया। मिन्हा ने खामोश नजरों से उसे देखा और फिर बिना कुछ कहे उतरकर नीचे आ गई। असफंदयार ने हैरानी से उसके बदले हुए तेवरों की तरफ देखा। मिन्हा, क्या हुआ? तुम मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। खाना खाते हुए असफंदयार ने मिन्हा को मुखातिब किया। मिन्हा ने अपनी प्लेट में थोड़े से चावल निकाले। वो गहरी सोच में गुम थी। असफंदयार की बात पर उसने चौंक कर उसकी जानिब देखा और फिर कुछ लम्हों तक वो उसे देखती रही। आप मुझे कब तक तलाक देंगे? आपका दिल मुझसे कभी नहीं भरेगा? मिन्हा ने अजीब से खाली लहजे में असफंदयार से सवाल किया। असफंदयार के हलक में नवाला अटक सा गया। उसने एक ठंडी सांस भरकर मिन्हा को देखा। मिन्हा, क्या हुआ? तुम अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही हो? असफंदयार ने मिन्हा का हाथ थामते हुए कहा था। मेरी बात का जवाब दें। आप मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे और किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे। मिन्हा ने पूरी तरह से असफंदयार की जानिब मुतवज्जो होकर कहा। असफंदयार को चुप लग गई थी। वो मिन्हा को कैसे बताता कि वो उससे मोहब्बत करने लगा है, उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मिन्हा, मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। असफंदयार ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर मिन्हा अपनी जगह पे खड़ी हो गई। कमरे में आने से पहले इस बात का फैसला करके आइएगा कि आपका दिल मुझसे कब तक भरेगा और आप मुझे कब अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देंगे। मिन्हा ने रोते हुए असफंदयार से कहा और तेजी से कमरे में चली गई। असफंदयार ने हैरानी से मिन्हा को देखा। उसे उसका ये रवैया समझ नहीं आ रहा था। वो खाना छोड़कर अपने कमरे में गया। मिन्हा बेड पर बैठी रो रही थी। असफंदयार ने बेबसी से मिन्हा को देखा। क्या हुआ? मुझे कुछ तो बताओ। असफंदयार उसके सामने बैठ गया और उसका रुख अपनी जानिब किया। मिन्हा का चेहरा आंसुओं से तर था। कुछ देर तक वो सर झुकाए रोती रही। जब आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं। मैंने बगैर माँ बाप के जिंदगी गुजारी है। मैं जानती हूं कि जिंदगी किस कदर तल्ख होती है। मैं अगर आज आपके सामने बैठी हूं तो उसकी वजह यही है कि मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। अगर वो आज जिंदा होते तो यकीनन मैं आपके सामने नहीं होती। मिन्हा बेतहाशा रो रही थी, जबकि उसकी प्रेगनेंसी का सुनकर असफंदयार का मुंह खुला का खुला रह गया। अगर बेटी हो गई और उसकी किस्मत भी मेरे जैसी हुई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मिन्हा ने असफंदयार का गिरेबान थाम लिया और उसके सीने से सर टिकाए फूट फूट कर रोने लगी। उसी लम्हे असफंदयार को एहसास हुआ कि वो अपनी ताकत के नशे में चूर होकर मिन्हा के साथ कितना गलत कर चुका था। उस लम्हे असफंदयार की आंखों में खौफ झलका। उसकी आंखें लहू झलकाने लगी थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई उसकी बेटी के साथ ये सलूक करे।
اسفندیار نے نرمی سے منہا کو خود سے الگ کیا تھا۔ منہا، میں تم سے شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تمہارے بغیر ایک پل بھی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسفندیار نے منہا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے ہوئے کہا تھا۔ منہا دھندلی ہوتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ منہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، ہماری بیٹی کی میں اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کروں گا۔ اسفندیار کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ منہا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسفندیار کو اس دن احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط تھا، مگر اب وہ اپنی ساری غلطیوں کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ اس روز اس نے خود سے وعدہ کیا، وہ منہا کو زندگی کی ساری خوشیاں دے گا۔ منہا نے سر اٹھائے روتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ آپ مجھے اپنی زندگی سے کبھی نکالیں گے تو نہیں؟ وہ جانے کیوں بے اعتبار سی ہو رہی تھی۔ اسفندیار مر سکتا ہے مگر تمہیں خود سے جدا کبھی نہیں کر سکتا۔ اسفندیار نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اسے یقین دہانی کروائی تھی۔ منہا ایک بار پھر سے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔